It is rightly called the festival of the festivals because for the tribals, for the indigenous inhabitants, this is one of the longest festival organized by the state government under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Nefirio. Thankful to the tourists who have come from all over the nation and all over the world who are participating and experiencing the Naga traditional heritage. Experiential tourism is what we call it. अगर संकल्प नहीं रहता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आज आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन हजारों में पर्यटक आ रहे हैं। प्रतिदिन पूर्वोत्तर आज उभर रहा है। भारत देश के साथ दूरदर्शिता को मानते हुए, जानते हुए एक अखंड भारत के लिए उसमें नागालैंड प्रदेश भी एक है। उसी तरह पूर्वोत्तर जोड़ चुका है और हम लोग भी उन सपनों को देखने का सोचते हैं जो इस देश के सब लोग युवा सोचते हैं। We are in Kohima right now and presently joined by the Tourism Minister of Nagaland as well as senior BJP leader Mr. Temje Melong. This is currently the festivities of Hornbill are ongoing, so we will be speaking about the Hornbill festival as well as the recent political dynamics that are playing out in the country. So first of all, sir, thank you for joining with us. Thank you very much. Sir, first of all, let's begin with the festivities since the Hornbill festivals is ongoing, which is called the Festival of the Festivals. As a tourism minister, you have been looking after the affairs of the Hornbill. How successful, how smoothly has the operations been going? Because we are hearing many good things, especially from the international consulate as well, regarding the Hornbill festival. So, what is the mood currently? You have seen the festival, and I hope all of you are very happy. So you can understand the mood by yourself. Being in a festivity in Nagaland at Kohima, it is rightly called the festival of the festivals because for the tribals, for the indigenous inhabitants, this is one of the longest festival organized by the state government under the leadership of our Honorable Chief Minister Shri Nefirio, and it has been 24 years. All the 17 different tribes of Nagaland, they celebrate their festivities in their own native districts and villages. And at the end of the year, we culminate together all the tribes, their cultural, their traditional, artisans, social entrepreneurs, and economic entrepreneurs all gather here together to showcase the rich diversity but inclusive traditional heritage of the Nagas, and together with it the contemporary music and fusion, together with international guests and tourists that are there. So it is a beautiful atmosphere. Obviously, you may hear a lot of good things. There are also some hiccups, which is natural for such a mega festival. There will be some problems, but problems doesn't determine the efforts that are being made by the government of this day, by the Department of Tourism, and all the line departments that are working together with all the stakeholders. And I'm sure this year being the 24th year, it is envisioning itself to spread out even bigger, larger. We are really thankful to the tourists who have come from all over the nation and all over the world who are participating and experiencing the Naga traditional heritage. Experiential tourism is what we call it, the Hornbill Festival today. हमने नागालैंड के चीफ मिनिस्टर रियो जी के साथ बात किया था। उन्होंने कहा था कि नागालैंड का जो एक ब्रांड है, एक इमेज है, उस पे ऊपर जो काम कर रहे थे उसका ही नतीजा है हॉर्नबिल। क्योंकि पहले जब हम नॉर्थ ईस्ट में बात करते थे, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी का बात आता था, नागालैंड में के बारे में भी बात आता था, लेकिन अभी जो देख रहे हैं कि लोग नागालैंड में आके लोगों को नागा जो सभ्यता के ऊपर जान रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहे हैं, नेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो एक इमेज था उसका एक चेंज आ गया है जो ये, और हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ अ टेस्टिमोनी ऑफ दैट? आप सबों को ये जानना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री जो अभी मुख्यमंत्री हैं,
नेफ्यू रियोजी, वो 5वां बार मुख्यमंत्री बना है। हमारे ख्याल से पूर्वोत्तर का सबसे सीनियर होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा। जब हॉर्नबिल फेस्टिवल शुरू हुआ था, गंभीर परिस्थितियों में शुरू हुआ। हॉर्नबिल एक चिड़िया के नाम है जिनकी ऊपर हम लोगों का पूरा संस्कृति बैठा हुआ है। आज नागालैंड के विषय में ही नहीं, पूर्वोत्तर के विषय में हॉर्नबिल फेस्टिवल एक पूर्वोत्तर का उत्सव मनाया जाता है। चूँकि नागालैंड प्रदेश पूर्वोत्तर में है और इसी तरह आज हम लोग देख सकते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री नेफ्यू रियोजी का और आज का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके सहयोग से जो पर्यटकों का मंत्रालय है, दिल्ली में हो या नागालैंड प्रदेश में हो, ये सब एक दूरदृष्टिता होने के कारण ही आज ये चीज़ों को देख रहे हैं। अगर संकल्प नहीं रहता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। और आज आप देख सकते हैं कि प्रतिदिन हजारों में पर्यटकों आ रहे हैं, प्रतिदिन। पिछले साल से तो बहुत उभर के इस साल हुआ है। ट्रैफिक का इतना प्रॉब्लम है, नाराज नहीं हूँ। हम भी ट्रैफिक में फंसे थे, इतना ही ट्रैफिक हो गया, इतने लोग आए हैं। पर्यटक का नागालैंड प्रदेश का मंत्री 1 घंटे फंस गया था खुद स्वयं। हाँ, परसों। उस रात को काफ़ी टाइम लगा निकलने में, मगर खुश होता है कि चलो हमारे प्रदेश में एक एक्सपीरियंस होता है। पहले पूर्वोत्तर में इकोनॉमिक ब्लॉकेज होता था, अभी ट्रैफिक होता है टूरिज्म के लिए। ये एक चेंज है, आप बोल सकते हैं। नहीं, पूर्वोत्तर में इकोनॉमिक ब्लॉकेज वो बहुत पुराना कहानी हो गया। पूर्वोत्तर आज उभर रहा है, भारत देश के साथ दूरदृष्टिता को मानते हुए, जानते हुए एक अखंड भारत के लिए। उसमें नागालैंड प्रदेश भी एक है, उसी तरह पूर्वोत्तर जोड़ चुका है। और हम लोग भी उन सपनों को देखने का सोचते हैं जो इस देश के सब लोग युवा सोचते हैं। पूर्वोत्तर के बारे में आप बात किया, मोदी जी ने अब तक 50+ विजिट्स नॉर्थ ईस्ट में लगाए हैं। नागालैंड में भी आए हैं, असम में भी आए हैं, सब जगह पे जा रहे हैं। तो पूर्वोत्तर में एक जो चेंज आया है 2014 के बाद जब मोदी जी आए हैं, उसका आप क्या देखते हैं कि ये जो हो रहा है कि फेस्टिवल भी नहीं, बट अलग अलग जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, उसका एक फलस्वरूप है ये? देखो, जब एक देश का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी की तरह संकल्प रखते हैं, वह दिल्ली में बैठ के भी कोहिमा दूर नहीं रखा और पूर्वोत्तर को कभी दूर जाने भी नहीं दिया। सही बात। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। आज अगर दीमापुर से कोहिमा 1 घंटे 10 मिनट में पहुंचते हैं, इसी सड़क में आज से 10-12 साल पहले हम लोगों को 4 से 6 घंटा लगता था और मालूम नहीं कि कोहिमा कब पहुंचे। आज इतने घंटे में तो हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, कोहिमा से दीमापुर करके, और जाके विश्राम भी कर लेते हैं। तो संकल्प रख के देश को जोड़ाने का काम मोदी जी ने किया है और आज उसका फल आप विभिन्न तरीक़ों से आप देखेंगे। आज अगर पर्यटक नागालैंड प्रदेश की तरह राज्य में दूर दूर की कोने कोने वाले राज्य में भी अगर देश विदेश से लोग बेझिझक, बेखौफ, बेकोई शक अगर आ पा रहे हैं, तो वो हमारे गुरुजी मोदी जी के संकल्प में जुड़ा हुआ था। अभी आपने आपके गुरुजी के बारे में कहा, मोदी जी के बारे में कहा, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। अभी हाल ही में 5 स्टेट इलेक्शंस और आज मिजोरम का रिजल्ट अभी तक आ रहा है, हुआ है। उसमें बीजेपी को जो है बड़ी सफलता मिला है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। बहुतों ने तो ये कह दिया था कि छत्तीसगढ़ में तो पॉसिबल ही है नहीं। तो ये आप कैसे देखते हैं ये रिजल्ट्स को? क्योंकि जो एक कैंपेनिंग चल रहा था अपोजिशन की तरफ से कि ये सेमीफाइनल है, हम जीतेंगे, फिर फाइनल के लिए तैयारी, लेकिन सेमीफाइनल में तो आप लोग ने सिक्सर मार ही दिया और फाइनल में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तो ये बहुत एक बड़ी सफलता है आप लोगों के लिए।
मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ना तो कोई सेमीफाइनल होता है, ना क्वार्टर फाइनल होता है, ना फाइनल होता है। चुनाव जीतने का तरीका से नहीं, अपना भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, आज मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं और पूरा देश में जो सुधार हुआ है, जो डेवलपमेंट्स आए हैं, जिस तरह गांव-गांव के लोगों को धन पहुंचा है और उनको उठाने का प्रयास हुआ है। आप लोग जानते हैं 13 करोड़ से अधिक बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को मोदी सरकार ने उठा के आगे बढ़ाया है। ये चीज़ें हम लोग क्यों भूल जाते हैं? इंडी वाली जो है वो लोग हमेशा क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, बाद में एडिशनल सेमीफाइनल, एडिशनल फाइनल, जॉइंट फाइनल करते रहेंगे। भाजपा के लिए, मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, नड्डा जी के लिए ये सब नहीं है। चुनाव के मतलब प्रजा के सामने अपने संकल्प को लेके, मोदी जी की दूरदृष्टता को लेके, पार्टी का नीति को लेके आगे बढ़ते हैं। और आम आदमी समझते हैं, ये गांव के लोगों के आदमी समझते हैं, कस्बा के लोगों की लोग समझते हैं, गरीब समझते हैं। वो सब ड्रामा करने से थोड़ी होता है। आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है देश भर में इंडिया एंड भारत को लेके, आपको क्या मानना है, इंडिया या भारत या बोथ? देखो, अपना संविधान में कहा गया है इंडिया विच इज ऑल्सो भारत। नाउ जो अपना विपक्ष की जो पार्टी है वो लोग कुछ नाम भी बना ले, वो थोड़ी वो वाला इंडिया है जो हम लोग के मन का इंडिया और भारत है। नाम कुछ भी बना सकते, कल आप कुछ और बनाएंगे। उनकी गठबंधन साथ नहीं आ पा रहे तो नाम कैसे साथ आएंगे? हम लोगों के लिए तो इंडिया जो भारत है और भारत जो इंडिया है, और उसी भारत को बनाने के लिए मोदी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग छोटे छोटे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे हैं और उसी तरह हम लोग भी क्रियाक्रमों को करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो वाला इंडिया, वो वाला भारत ऐसा नहीं है। भारत वही है जो संकल्प के साथ लेके जा रहे हैं, और वही भारत है जो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से भाजपा की नियत और मोदी जी को जिताया है। So this was Temgem Ima Along, Tourism Minister as well as senior BJP leader from Nagaland. He has stated that the Prime Minister Narendra Modi's role as well as the role played by nephew Rio, 5-time Chief Minister, has ushered a new development era in Nagaland. With video journalist Hirok Deka, this is Nibir Deka reporting for the New Indian. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Coup.